So I think it's 8 o'clock and I'm sure people will start joining us, and now all of us are here. So we'll start the program as recording has already started on live. So we are live right now at Facebook. Thank you everyone for joining today's program organized by Friends of India Society International. I'm Vivek Sinha, one of the General Secretaries of FISHI, welcoming you to this great conference on this very important personality which originally belonged to Arya Samaj, and Arya Samaj as a group has done so much tremendous work. So we'll get a glimpse of some of that through Swamiji's life and achievement. The Friends of India Society International has conducted seminars, workshops, and invites different distinguished persons on matters of India and the world at large. Friends of India Society International plans to educate the Friends of India all over the world in support of India causes and the world togetherness. And it's so coincidental that with Arya Samaj as its tagline, Sa Vidyaja Vimukte, it can work very well with the overall objective of what FISHI has. In this series, we have a very dynamic presentation on this good topic by Dr. Rajendra Vidyalankarji. And today's topic is Swami Shraddhanandji, Life and Achievement. At this time, I would encourage everyone to please mute yourself throughout, as well as during Q&A. Now, I would like to invite our international president, Dr. Bhishma Agnihotri. Dr. Agnihotri has a long list of accomplishment and credential to his credit. He was the youngest person to be selected on a competitive basis as a judge in India. He served as the first person of India origin to head an American law school and was dean and chancellor for the longest tenure in American law schools. He served various organizations in the service of the community at large. Dr. Agnihotri was appointed as the first ambassador at large by the government of India in 2001. He traveled the world in strengthening the ties of NRIs from all backgrounds, gender, and religion to our motherland, India. Without further ado, it is my great pleasure to invite Dr. Bhishma Agnihotri. Bhishma ji. Bhishma ji. ठीक है Yeah, हाँ Bhishma ji, yes. ठीक है देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने जो डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, विद्यालंकार जी हैं, वो हिंदी में बोलेंगे, सो मैंने सोचा तो मुझे क्षमा करना राजेंद्र जी अगर मैं कुछ गलत बात कह दूं हिंदी में। अंग्रेजी बोलने की आदत बहुत पुरानी पड़ी हुई आज यहाँ पे, 30-40 साल से यहीं पर हूँ। ऐसा है कि आप का इस कार्यक्रम में स्वागत, बहुत अच्छा है आप आए। आप तो आपका परिचय तो सबको मिल गया है, उन्होंने सबको पत्र भेज आपकी पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन भेज दी थी ताकि आपके लंबे अच्छे परिचय का परिचय ना देने की जरूरत पड़े मुझे। तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा विद्वान, कर्मठ, ज्ञानी और विचारक हमारे मध्य में है, और ये हमारा और सौभाग्य है कि आपका जो विषय है वो भी एक युग पुरुष के बारे में है, जिनका जीवन जीना
काम करना और जाना सभी का एक अद्वितीय क्षेत्र रहा है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत जाना है और एक्चुअली वो उसी जगह से उनका जन्म हुआ जिस जगह में जिसके इर्द गिर्द मैं भी जन्मा हूँ, तो इसलिए मेरा बाकी आर्य समाज के साथ तो मेरा बहुत संबंध रहा है गहरा। मैं आर्य समाज के कॉलेज में स्कूल में बड़ा हुआ और इसलिए हर चीज़ जो है स्वामी दयानंद से लेके उसके बाद की पहले तक की और उनके जीवन के बारे में काफ़ी पढ़ता रहा, सुनता रहा। लेकिन आज समय मेरा बात करने का नहीं है, अब उन्हीं से सुनेंगे ताकि उनका ज्ञान हमको भी मिल सके और उनके द्वारा हमें उनके जीवन के बारे में मालूम हो और उनका जीवन आज के समक्ष आज के चीज में कितना जरूरी है समझना कि उन्होंने सारा जीवन कैसे लगाया और उनका जाना भी कैसे हुआ, ये आज हम समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने जब रिक्वेस्ट की थी अपने लोगों को उनके बारे में अपना बात की जाए, किसी एक दो का विचार का कि वो कौन थे, कैसे थे, तो लोगों को कईयों को मालूम भी नहीं है। इसलिए ये अच्छी बात है कि हम शुरू कर रहे हैं और इसके बाद और भी बातें इनके बारे में होंगी, ऐसा हमारा ख्याल है। तो मैं आप पर निवेदन करता हूँ और बाय द वे सबसे बता दूं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है आज, एक और सौभाग्य कि हमारे मध्य में आज हमारे जो स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, उनके जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं वो भी हमारे मध्य में हैं। आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा, जो हमारे स्वामी जी थे उनका बचपन का नाम जो था वो विज था। विज का उनका असली नाम जो लास्ट नेम था विज था। तो हमारे मध्य में मोहित विज हैं, उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं और वो हमारे बड़े साथी रहे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं और हमारे यहाँ की उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा भारी हॉल खड़ा कर दिया है स्वामी जी के नाम पे और बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं और बड़े ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। अशोक के से बिजनेसमैन तो कह रहा ठीक नहीं उनके लिए, वो तो बच्चे ही हैं अभी, तो वो बहुत काम कर रहे हैं अच्छा। इसलिए मैं उनको भी कहूँगा 2-3 मिनट के बाद जब साहब ये बात हो जाए तो वो भी कुछ बात कहेंगे। डॉक्टर साहब आप कहिएगा, मेरी हिंदी को क्षमा कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। फ्रेंड्स इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल के माननीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीष्म अग्निहोत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुरोहित जी, बहुत सारे प्रतिष्ठित महानुभावों को मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। श्री पीयूष अग्रवाल जी हैं, मोहित बिज जी हैं, विमल पटेल जी हैं और बहुत सारे नामों को मैं देख पा रहा हूं। आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के माननीय प्रधान श्री भुवनेश खोसला जी, माननीय महामंत्री श्री विश्वतार्य जी और संगठन के जुड़े हुए अन्य बोर्ड मेंबर्स, आप सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से भाई विवेक सिन्हा जी का
जिनके सहज हास्य ने, विनम्रता ने मेरे अंदर मौजूद झिझक को कम से कम 12-15 दिन पहले खत्म कर दिया था। तो आज मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं आप सबसे पहली बार मिल रहा हूँ। आप सबके अंदर मुझे विवेक सिन्हा जी के ही दर्शन हो रहे हैं, वैसे ही विनम्रता और स्वीकार्यता के दर्शन हो रहे हैं। इस सहजता के लिए भाई विवेक जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। आज अवसर है अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर एक विमर्श करने का, संवाद करने का। डॉक्टर भीष्म अग्निहोत्री जी ने प्रारंभ में कहा कि मैं माफी चाहूंगा यदि मेरी हिंदी में कोई छूट रह जाए, त्रुटि हो जाए। उसी लाइन पर मैं भी आपसे माफी चाहूंगा कि मेरी हिंदी में कोई दुरूहता, क्लिष्टता, कठिनाई आपको हो तो उसको भाई विश्रुत जी आपके लिए, सिन्हा जी आपके लिए थोड़ा आसान बना देंगे। इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं और मुझे सरलता होगी अपनी बात इस भाषा में कहने में। आपको असुविधा हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना हूं, डॉक्टर भीष्म अग्निहोत्री जी की तरह से ही। स्वामी श्रद्धानंद जी जिस दौर में भारत में हुए, मुझसे बेहतर ढंग से आप सब लोग भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को, भारत के तत्कालीन समाज को, भारत की तत्कालीन चेतना को, भारत के तत्कालीन थॉट प्रोसेस को, भारत के तत्कालीन विल, इच्छा शक्ति को आप मुझसे बेहतर ढंग से समझते हैं। भारत का ये दुर्भाग्य रहा है हमेशा से कि हम बाहर से एक होते हुए भी अंदरूनी तौर पर कहीं बटा हुआ समाज बनते चले गए। हमारी सांस्कृतिक चेतना दुनिया में आला दर्जे की है। कभी हमें इस बात का गर्व था, अभिमान रहा है। हमारे मुनि, हमारे ऋषि, हमारे स्कॉलर, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे आचार्य, हमारे गुरु हमें लगातार इस बात का एहसास कराते रहे कि एतद् देश प्रसूतस्य सगा सादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरितम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। सारी दुनिया के मनुष्य इस देश से मानवता, भाईचारा, चरित्र, सभ्यता सीखने के लिए इस देश की शरण में आदिकाल से, आज से नहीं आदिकाल से आते रहे। और ये ऐतिहासिक फैक्ट है। हमारे देश में ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि इतिहास को इतिहास की तरह से कभी नहीं लिखा गया। इतिहास को दर्शन की तरह से लिखा गया, इतिहास को साहित्य की तरह से लिखा गया, इतिहास को कविता के रूप में लिखा गया, इतिहास को हमारी पूरी सांस्कृतिक चेतना बनाया गया। और उस चेतना के साथ जब हम उसका संदर्शन करते हैं बहुत पीछे जाकर के, तो भारत का वो गौरव, वो स्वर्णिम अतीत हमें बहुत सम्मोहित करता है, आकर्षित करता है। उतने विशाल वैभव के साथ, सांस्कृतिक वैभव, भौतिक वैभव छोटी चीज होगी, लेकिन उस सांस्कृतिक वैभव के साथ हमारी यात्रा शुरू हुई थी इस दुनिया में। लेकिन जब कोई सांस्कृतिक चेतना बड़ी समृद्ध हो जाती है और कुछ ऐसे संस्थान भी विकसित हो जाते हैं जो उन व्याख्याओं को, उनके प्रवाह को, उनकी गतिमानता को, उनकी निरंतरता को, उनकी कंटिन्यूटी को कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, उसे ब्रेक कर देते हैं, उसमें हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं, तो उसमें खास किस्म की जिद, खास किस्म के दुराग्रह, खास किस्म का विखराव पैदा हो जाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे देश की ये रही कि हम कभी वर्णों के साथ चले थे, हमने कार्यों के आधार पर व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए थी,
लेकिन हम जातियों की तरफ उन्मुख हो गए और उन जातियों के कारण जिस तरह की बेड़ियां भारतीय समाज में पड़ी और हमारा परस्पर द्वेष बढ़ा, तो इस विशाल देश को आक्रांताओं ने अपना शिकार बना दिया। इस देश में कभी भी लाखों की संख्या में लुटेरे नहीं आए। चंद एक आदमी हजारों हजारों की फौज लेकर के, 2-2, 4-4 हजार के समूह लेकर के, बटालियन लेकर के, और सारे भारत को रोंदते चले गए। पौरुष की कमी नहीं थी, बाजुओं का बल, बाजुओं का वलवला कभी कम नहीं हुआ था, लेकिन एक समझ गड़बड़ा गई थी और वो समझ समय समय पर दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस देश में तमाम महापुरुष आते रहे हैं। आचार्य शंकर से लेकर एक लंबी परंपरा चली और स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, न जाने कितने ही नाम, अरविंदो घोष, बहुत सारे नाम इस श्रृंखला में आए। 19वीं शताब्दी में भारत में जो रेनेसां चला, नव जागरण का अभियान चला और जिसका ओरिजिन बंगाल को माना जाता है, उसमें एक बहुत प्रतिष्ठित नाम, यदि आप आर्य समाज का ना रखें, आर्य समाज को ना लें, तो कहीं ना कहीं हम भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास को व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से शायद नहीं समझ पाएंगे। ऋषि दयानंद सरस्वती की पुनर्जागरण की चेतना वो कहीं से आयातित चेतना नहीं थी। बंगाल के अंदर एक विचार, एक ख्याल उठा था कि हमें अंग्रेज जैसा होना चाहिए। ऋषि दयानंद की चेतना कहीं इसके थोड़ा सा अलग थी, और वो चेतना ये थी कि हमें किसी जैसा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने जैसा ही हो जाएं, जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारा मूल है, हमारे दर्शन का, हमारी फिलॉसफी का जो मूल स्रोत है, उसमें कहीं कटुता नहीं है, कड़वाहट नहीं है, द्वेष नहीं है, हिंसा नहीं है, भटकाव नहीं है, बिखराव नहीं है, बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। हम लोग तो वो, हमारा ऋग्वेद की चेतना कहाँ खत्म होती है? ऋग्वेद 10,000 से ज्यादा मंत्रों की यात्रा करता है साहब, और अंत में जो अंतिम सूक्त है, अंतिम चैप्टर है ऋग्वेद का, जिसे हम सूक्त कहते हैं, उस सूक्त में 4 ऋचाएं हैं और उस सूक्त का नाम ही संगठन सूक्त है। जुड़ जाइए, एक हो जाइए, यूनिट हो जाइए, यूनिटी बनाइए। और वो यूनिटी किस स्तर पर हो? संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी। यानी एक संगठन का एक पूरा स्वरूप, संगठन का एक पूरा फलसफा, एक पूरी फिलॉसफी ऋग्वेद हमारे सामने रखता है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने वहां से विषय उठा। आपको किसी जैसा होने की जरूरत नहीं, अपने जैसा होइए। और जो सिद्धांत भारत की आजादी के विषय में, जो चेतना ऋषि दयानंद ने हमें दी, हम क्यों गुलाम हैं? हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमने अपने समाज को बेड़ियों में जकड़ दिया है, हमने उन्हें पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया है, हमने अपनी आधी आबादी को पापी नहीं मान लिया है, हमने अपने मेहनतकश आदमी को नागरिक अधिकारों से, मूल अधिकारों से वंचित कर दिया है। अरे छोड़ो भाई इन्हें, ये मनुष्य है मेरी तरह से, ईश्वर पुत्र हैं, ये ईश्वर की संतति है, इस देश की संतानें हैं। और वो चेतना लेकर के ऋषि दयानंद खड़े हो। हम शिक्षा में सारी दुनिया को ज्ञान देते थे, हमें कहीं से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो वो दे रहे हैं वो हमारे पास है, वो चेतना हमारे पास है। हाँ, उसकी मेथोडोलॉजी, उसकी प्रविधि, उसका तरीका, उस विज्ञान को रिसीव करने का तरीका यदि विच्छिन्न हुआ है, उसकी आवश्यकता है तो लीजिए। ऋषि दयानंद का भाषा से विरोध नहीं था, ज्ञान से विरोध नहीं था, लेकिन वो भारत के संदर्भ में, भारत के साहित्य के संदर्भ में उस समस्त ज्ञान को रिसीव करना चाहते थे और भारत की
ऋषि दयानंद की भारत की समृद्धि की, अंग्रेज से भारत को मुक्त कराने की, भारत के पराभव की, भारत के पराधीन हो जाने की जो तर्क शक्ति ऋषि दयानंद ने, जो कारण स्वामी दयानंद सरस्वती ने गिनवाए थे, उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने यथावत एज इट इज उनको कंसीडर किया। स्वामी श्रद्धानंद ऋषि दयानंद के शुरुआती शिष्यों में एक हुए। मैं तारीखों पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। भारत का पंजाब प्रांत, जिसने इतने महनीय महापुरुषों को, इतने क्रांतिकारियों को, वीर प्रसूता भूमि है, वीर प्रसूता, जिसने वीरता को ही जन्म दिया। स्वामी श्रद्धानंद जैसे शेरों को जन्म, हजारों लाखों की परंपरा में जिन लोगों ने भारत को हर प्रकार से समृद्ध करने में, चाहे जमीन खोदी तो वहां से सोना निकाला और आवाज लगाई तो वहां से वीरता की हुंकार भरी, उस वीर प्रसूता भूमि में जालंधर के पास तलवन नाम के गांव में स्वामी श्रद्धानंद का नानक चंद जी के घर में जन्म हुआ। पिताजी अंग्रेजी सल्तनत में, अंग्रेजी साम्राज्य में बड़े पुलिस अधिकारी थे, बरेली के अंदर पोस्टेड थे। जब स्वामी श्रद्धानंद बहुत छोटे थे, उस समय से ही उन्होंने उस पूरे वैभव के साथ जीवन शुरू किया था। दारिद्र्य नहीं था, घर में अभाव नहीं था, संपन्नता के वातावरण में उनकी परवरिश हुई, विवाह हुआ। शिव देवी उनकी पत्नी थी। जिन दिनों उनकी परवरिश हो रही थी और बरेली के अंदर रहते थे, दुर्भाग्य से अंग्रेजी पढ़ने वाले, उस समय उस वक्त अंग्रेजी पढ़ने वाला एक वर्ग, संभ्रांत वर्ग भारत में बन गया था, जिसने भाषा को विशिष्टता का आधार बना लिया था। भाषा सिर्फ अपने आप को कम्युनिकेट करने का एक जरिया है, मैं आपके सामने अपने भाव को व्यक्त कर सकूं, ये एक जरिया भर है। उससे चिंतन का, उससे नॉलेज का, उससे ज्ञानी हो जाने का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन भारत के अंदर दुर्भाग्य से भाषा वैदुष्य का, भाषा पढ़े लिखे होने का, भाषा विशेष होने का एक हथियार बन गई। और उस दौर में स्वामी श्रद्धानंद, शिक्षा उनको अंग्रेजी मिली, उनके दिमाग में एक नशा, एक खुमारी खड़ी हुई, एक खास तरह का लेफ्ट माइंडेड चिंतन उनके दिमाग में खड़ा हो गया। भगवान नहीं होता, नास्तिकता का भाव, ईश्वर नहीं है, ये दुनिया अपने आप से है, इसको कोई बनाने वाला चलाने वाला नहीं है, और ये जो मोरालिटी है, ये जो खान पान के नियम हमने भारत में बनाए हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, नैतिकता का कोई मतलब नहीं है। सदाचार क्या होता है? आदमी की जरूरतें हैं, सेक्सुअल जरूरतें हैं, खाने पीने की जरूरतें हैं, जीव के स्वाद हैं, इंद्रियों के स्वाद हैं। जन्म लिया है तो सब कुछ करे, यदि उसे उपलब्ध है तो सब कुछ करे। इस चिंतन के साथ कहीं उनकी शिक्षा धीरे धीरे मित्रों के संपर्क से पूरी हो रही थी। और हर पिता की तरह से जब उसका बालक थोड़ा सा इस रास्ते पर चलना शुरू करता है तो हर पिता को एक अजीब किस्म की घबराहट होती है। पिता नानक चंद को भी वो घबराहट हुई, और उन दिनों स्वामी श्रद्धानंद का नाम मुंशी राम होता था। उन्होंने कहा, मुंशी राम अपने रास्ते को बदलो। और सौभाग्य देखिए, जब कभी कुछ विशेष होना होता है तो शायद संयोग और घटनाएं कैसे घटती हैं। स्वामी श्रद्धानंद उन दिनों अपने जन जागृति अभियान में, लोगों को जगाने के अभियान में बरेली गए। वहां नानक चंद पुलिस अधिकारी थे। पुलिस अधिकारी होने के कारण कानून व्यवस्था देखने के लिए उनकी वहां ड्यूटी लगी। जब उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद का पूरा डिस्कोर्स सुना, उनका वक्तव्य सुना, आह्वान सुना, धर्म संस्कृति की व्याख्याएं सुनी, समाज के विषय में उनका पूरा एक कल्पनाशीलता उन्होंने रिसीव की। उन्होंने जाना कि भारत को किस तरह से समृद्ध और मजबूत बनाया जा सकता है।
हमें अपने बालकों की, अपने घरों की परवरिश, देखभाल किन वैल्यूज के साथ करनी चाहिए, ये तमाम विषय ऋषि दयानंद के डिस्कोर्स में जब आए, उनके भाषणों में, उनके प्रवचनों में आए, तो नानक चंद को ये लगा मेरे घर की तकलीफ का, मेरे बालक की परेशानी का, मेरे बालक के भटकते दिमाग का यदि ऋषि दयानंद का संस्पर्श उस ब्रेन को मिल जाए, उस मस्तिष्क को मिल जाए, तो शायद कोई परिवर्तन, कोई क्रांति हो जाए। बेटे को कहा, बेटे एक सन्यासी आए हैं, मुंशीराम एक बार चलो और उनका पूरा प्रवचन सुनिए। मुंशीराम कहने लगे, सभी बाबा एक से होते हैं, सभी चेले मूंढने का काम करते हैं और कोई जरूरत नहीं है, मेरे को उनसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास बहुत है, मैंने तमाम अंग्रेजी सभ्यता कानून को सीख रहा हूं और उनसे बेहतर ज्ञान कहां हो सकता है, मुझे आवश्यकता नहीं है। नानक चंद ने कहा, फिर भी बेटा मेरा आग्रह है, पुत्र के नाते और पिता का आदेश मानते हुए चलिए। 100 आग्रहों के बाद पिता का मन रखने के लिए बहुत ही अनमने मन के साथ मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद की सभा में पहुंचे और साहब क्रांति हो गई। जैसे गंदा सोना, दूषित सोना आग के संपर्क में आ गया, उसका सारा दूषण, उनकी सारी गंदगी, मन के अंदर मौजूद विकार, एक एक सवाल खड़ा होने लगा। और जो सवाल अंदर थे, हमारा चरित्र कैसा हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारा आचार विचार कैसा हो, समाज के बारे में हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, हमारा पारिवारिक जीवन कैसा हो, देश के प्रति हमारा भाव कैसा हो, अपने संस्कृति के प्रति हमारा भाव कैसा हो, ऋषियों की संतति परंपरा के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो, तमाम विषयों को ऋषि दयानंद ने अपने वक्तव्य में, अपने प्रवचन में सम्मिलित किया। लगा स्वामी श्रद्धानंद को पता नहीं कोई फंडी आदमी तो नहीं है, रात के अंधेरे में कुछ, दिन के उजाले में कुछ, क्या इनके कहे हुए शब्दों से इस बाबा जी का आचरण मिलता भी है कि नहीं मिलता। वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, भक्त नहीं थे केवल, और इसलिए लिखते हैं, कल्याण मार्ग का पथिक उनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहूंगा, हिंदी में है और भाई विश्वजीत जी को कहूंगा यदि हो सके तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी करें, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी जीवनी है जिसमें स्वामी श्रद्धानंद ने सब कुछ स्वीकार किया कि मैं ये बुराई भी करता था, ये बुराई भी करता था, ये दोष भी मेरे में था, दारू भी पी लेता था, ये भी कर लेता था, ये भी कर लेता था। और जब सुधार आया तो उसमें स्वीकार किया कि किस तरह से सुधार आया। उसमें लिखते हैं, मेरे मन में संदेह हुआ कि ये स्वामी जी जो कहते हैं क्या करते भी हैं। सुबह 4 बजे उठ करके उनके रास्ते बैठ गए कि ये कहते हैं 4 बजे उठा करिए, खुद भी उठते हैं कि नहीं। जहां बगीचे में ठहरे हुए थे, बगीचे के बाहर बैठ गए। कल्याण मार्ग के पथिक में लिखते हैं, ठीक 4 बजे स्वामी जी अपने घर से निकले, बगीचे के दरवाजे से निकले, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, थोड़ा घना अंधेरा था, वो इतनी तेज चल रहे थे, मैं लगभग दौड़ रहा था, वो चल रहे थे, बावजूद उसके अगले चौराहे से वो किधर चले गए मुझे पता नहीं लगा, अंधेरे में मैं नहीं देख पाया। दूसरे दिन फिर मैं उस चौराहे पर बैठा और फिर मैंने ये देखा कि वो गए, नदी के किनारे गए, उन्होंने व्यायाम किया, आचमन किया, संध्या वंदन किया, 2 घंटे ध्यान लगाया और उसी गति से वापस लौटे। उनके रात के जीवन को, अंधेरे के जीवन को, अकेलेपन के जीवन को जब जांचा तो लगा नहीं, जो कहता है वो करता भी है। ये जो प्रवृत्ति थी, ये जो संस्कार था, देख करके सीखूंगा, ये जो जिज्ञासा भाव था, जो मुझे कहा जा रहा है क्या व्यक्ति करता भी है कि नहीं, ये वो व्यक्ति करता है जिसके अंदर बहुत गहरी अंदरूनी सत्यनिष्ठा मौजूद होती है। और वो सत्यनिष्ठा स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में थी। उन्होंने एक विचार बना लिया कि अब ऋषि दयानंद को फॉलो करूंगा, और जब दीवाने बने तो जितना पीछे की तरफ दौड़ रहे थे उससे कई गुनी गति से आगे की तरफ। कैसे किसी जीवन में क्रांति आ जाती है,
कैसे कोई भाव, जिज्ञासा भाव किसी के अंदर हो, जानने की इच्छा किसी के अंदर हो, तो वो किस तरह से परिवर्तित होता है, ये स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का मूल मंत्र था, जो उनके परिवर्तन का भाव जगाने वाला था। शादी हो गई, शिव देवी से विवाह हुआ, 4 बालक पैदा हुए। बड़ी बेटी 8 साल की थी, दूसरी बेटी 6 साल की थी हेम कुमारी, बड़ी बेटी वेद कुमारी थी, तीसरे बेटे हरिश्चंद्र थे 4 साल के थे, छोटे बेटे इंद्र विद्या वाचस्पति 2 साल के थे कि उनकी श्रीमती जी चल बसी। और जब श्रीमती जी गई तो एक वाकया, बहुत माने पति पत्नी के बीच का एक संवाद क्या हो, कैसे पत्नी ने उनको एक बार झकझोरा था, जगाया था, मैं उस संदर्भ में लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने आपसे कहनी है। लेकिन जब जाने लगी तो उन्होंने कहा, आप स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, वकील हैं और बहुत प्रभावशाली हैं, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, आपको दूसरी देवी मिल जाएगी, आप जिस घर से देवी चाहेंगे आपका दूसरा विवाह हो जाएगा, पर मेरे ये बच्चे, इनका ख्याल करना, ये अकेले ना पड़ जाएं, ये उजड़ ना जाएं। उस वक्त स्वामी श्रद्धानंद ने वचन दिया, मां भी बनूंगा और पिता भी बनूंगा। उन 4 बच्चों की कच्ची गृहस्थी के साथ स्वामी श्रद्धानंद ने जितना बड़ा क्रांतिकारी अभियान किया और उनके पुत्रों ने जो कंट्रीब्यूट किया, वो अद्भुत अद्भुत दृश्य है। उनके पुत्र हैं, सबसे छोटे पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति। मैं और एक आग्रह करूंगा, उन्होंने किताब लिखी है मेरे पिता। ये वो बालक हैं, जब स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल बना दिया, वो कैसे बना उसकी चर्चा जरा सी आपसे करूंगा, तो अपनी सारी संपदा वो पहले ही अपना प्रेस, अपनी और संपदा गुरुकुल कांगड़ी को, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को डोनेट कर चुके थे। अंत में गुरुकुल कांगड़ी रह गया। गुरुकुल कांगड़ी का उत्सव होता था और उस उत्सव पर बहुत सारे लोग आते थे। तो रात के अंधेरे में स्वामी श्रद्धानंद गंगा के किनारे को मौजूद था हरिद्वार के अंदर, वहां से स्नान करके निवृत्त होकर के वापस लौट रहे थे। अंधेरा हो गया था, अप्रैल का महीना था। तो एक पति पत्नी जो संभवतः पंजाब से आए हुए थे, आपस में संवाद कर रहे थे। पत्नी कह रही थी कि आप ऐसा करिए, अपने बच्चे को हम भी गुरुकुल में भर्ती करा देते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर के कि गुरुकुल कांगड़ी के पहले 2 प्रवेश, जब वहां शेर, बघेरे, चीते, जंगली जानवर, हिंसक जानवर रहते थे, कोई पक्का मकान नहीं था, फूस की झोपड़ियां थी, बेहतर स्कूलों से हटा करके स्वामी श्रद्धानंद ने पहले 2 प्रवेश अपने दोनों सुपुत्रों के, हरिश्चंद्र जी का और इंद्र विद्या वाचस्पति का पहला प्रवेश गुरुकुल कांगड़ी में करवाया। और उस समय उस वार्षिकोत्सव पर वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि हम भी अपने बच्चे को यहाँ दाखिल करा देते हैं। तो पति पत्नी की बात सुनकर कहने लगे, अरे तुम्हें पता नहीं, इनके पास संपत्ति इतनी है, गांव में इतनी संपत्ति है, इनका प्रेस चलता है, सद्धर्म प्रचारक वहां से निकलता है, इतने बड़े आदमी हैं, खेती बाड़ी की जमीनें हैं, जालंधर के अंदर इनकी होशियारपुर अड्डे पर हवेली इतनी बढ़िया है, इनके पास यदि इनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ जाएंगे और कुछ नए भी बनेंगे तो बाप दादों का जोड़ा हुआ इतना है कि इनकी कई पुश्ते खाएंगी। तू क्या खिलाएगी अपने बच्चे को? इसलिए बस इतना ही ठीक है, ताली बजा, भाषण सुन, ताली बजा, 2-4 आने जो देने हैं इनको दे दे और रास्ता नाप। अपने बच्चे को खराब करने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह किसी और के घर से निकलना चाहिए, अपने घर में भगत सिंह पैदा करने की कोशिश मत करो। जब ये बात सुनी गई और स्वामी श्रद्धानंद के कान में ये बात पड़ी तो उन्हें ये ख्याल आया, ओहो, अभी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि तूने अभी तक सर्वहूत यज्ञ नहीं किया है। सर्वहूत यज्ञ एक पारिभाषिक शब्द है और आप में से प्राय सब लोग समझेंगे। सर्व माने संपूर्ण, हूत माने जिसमें डाल दिया, कुछ भी नहीं बचाया, जिसमें सब कुछ डाल दिया, ऐसा यज्ञ सर्वभूत यज्ञ कहलाता है।
अपनी संपत्ति, अपना शरीर, अपना जीवन, अपने बच्चे, जिस पर भी आदमी का क्लेम है वो सब कुछ न्योछावर कर दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो सर्वभूति यज्ञ कहलाता है। स्वामी श्रद्धानंद उस दिन इंद्र विद्या वाचस्पति और हरीश जी के पास सुबह 4 बजे गुरुकुल का सेवक आया कि आपको प्रधान जी ने बुलाया है। स्वामी जी गुरुकुल कांगड़ी में उस समय प्रधान कहलाते थे, और आकर के जब कहा कि क्या बात है, 4 बजे क्यों बुला लिया? बोले ये तो पता नहीं, लेकिन सारी रात वो कमरे में टहलते रहे हैं, एक कोने से दूसरा कोना, दूसरे कोने से पहला कोना, हाथ पीछे बांध रखे हैं और लगातार टहलते रहे। दोनों बच्चे वहां गए। पिताजी ने कहा बेटे मेज पर एक कागज रखा है, बड़ा सा कमरा था, उस मेज पर कागज रखा है, दीपक जल रहा है, मैंने कुछ लिखा है, उसे पढ़ लो, सहमत हो तो उस पर हस्ताक्षर कर दो। और उसमें क्या लिखा था साहब कि मैं अपना जालंधर का मकान, जो एकमात्र प्रॉपर्टी गुरुकुल को देने से बच गई थी, वो एकमात्र प्रॉपर्टी स्वामी श्रद्धानंद ने उस कागज के थ्रू आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को प्रदान कर दी, गुरुकुल को प्रदान कर दी। और उसके साथ बच्चों के ऊपर जो कपड़े पहने हुए थे उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी उनके बच्चों के पास नहीं रही। दोनों बच्चों ने वो पढ़ा। पिताजी ने पूछा बेटे सहमत हो? उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया, हस्ताक्षर कर दिए, वापस आ गए। वो बच्चे साहब जरा कल्पना करिए, जिनसे सब कुछ उनके पिता ने ले लिया, अपना बनाया हुआ सब कुछ वापस ले लिया और गुरुकुल को दे दिया। अगले दिन घोषणा कर दी, सार्वजनिक घोषणा कर दी, स्वीकार पत्र लिख दिया। वो बच्चा एक किताब लिखता बाद में, इंद्र विद्या वाचस्पति उनके छोटे सुपुत्र, और उस किताब का नाम है मेरे पिता। मैं अपनी जान की बाजी लगाने के बाद, अपना सब कुछ न्योछावर करने के बाद, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी मुझे उस आंख से आज भी नहीं देख पाती जिस आंख से सब कुछ ले लेने के बाद स्वामी श्रद्धानंद का सुपुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति अपने पिता को देखता है। कि क्या ग्रेटनेस, कितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था, और वो कितने सम्मान के भाव से देखता है। हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। आगे बढ़ूं मैं, चेतना थी। उनके कार्यों के मूल्यांकन पर आना चाहता हूं। भारत की गुलामी का मुख्य कारण यहाँ की शिक्षा थी। हमने वंचित कर दिया था अपने लोगों को, हमने पूरी तरह से बांट दिया था। भारत की वो जो प्रगतिशील शिक्षा थी जिसने सारी दुनिया, पीस का आइडिया हम तो कब से मंत्रों की भाषा में बोलते रहे हैं, ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति। केवल भारत की शांति की, केवल मेरे घर की, मेरे प्रांत की, मेरे देश की शांति की बात नहीं, केवल पृथ्वी की शांति की बात नहीं, हम तो समस्त ब्रह्मांड में शांति की बात करने वाले लोग थे। वो जो पीस का आइडिया था, वनस्पतियों में, प्रकृति में, सब जगह शांति। हमने देववंश से शांति पाठ किया है, हमें पीस का आइडिया कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। और ध्यान करिए साहब, पीस तब हो सकता है जब समाज में सभ्यता होगी, पीस तब हो सकता है जब सबका पेट भरा हुआ होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समान अवसर होंगे, बराबर के मौके होंगे, रेस बराबर की होगी, सामंजस्य होगा, जुड़ाव होगा, प्रेम होगा, स्नेह होगा। क्या इसके बिना शांति की संभावना है? क्या इसके बिना शांति संभव है? क्या इसके बिना संगठन संभव है? हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं उसकी घोषणा हम कब से करते रहे, और उसका तरीका क्या होगा ये हम कब से बताते रहे हैं। हमारे समाज में वो वैल्यूज थी। स्वामी श्रद्धानंद ने उन चीजों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया। ऋषि दयानंद सरस्वती ने भारत की समृद्धि के लिए एक प्लान दिया, और वो प्लान था भारत का एजुकेशन सेटअप। पूरा शिक्षा तंत्र ये परिवर्तित करना होगा। जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैकॉले के कल्पनाओं से निकला हुआ है, जो वुडन चेयर पर काम करने वाले मैक्स मूलर ने एक आइडिया हमारे ग्रंथों के, हमारे धर्म के बारे में हमें ट्रांसफर कर दिया है, वो हमारा
आधार, वो हमारी वास्तविकता, वो हमारी रियलिटी नहीं है। हमारी रियलिटी कुछ और है, और वो हम समझेंगे, वो हम एक्सप्रेस करेंगे, वो हम कन्वे करेंगे, उसकी व्याख्या हम करेंगे। और वो आधार लेकर के ऋषि दयानंद ने एक पूरा शिक्षा तंत्र बनाया। महानुभाव, ऋषि दयानंद का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। उसका जो सेकंड चैप्टर है, जिसको वो समुल्लास शब्द से कहते हैं, सेकंड चैप्टर, उसमें ऋषि दयानंद ने इतने सारे विषय हैं, देश के अंदर जो कुरीतियां आ गई हैं, बुराइयां आ गई हैं, धार्मिक आडंबर आ गए हैं, धर्म में गड़बड़ आ गई है, हमारे धर्म संस्थानों में कुछ कहीं काफी हद तक, बहुत हद तक गंदगी पसर गई है, उसकी सफाई का एक बहुत बड़ा अभियान ऋषि दयानंद के पास है, एजेंडा पास है। लेकिन आप समझिए सबसे प्रमुख एजेंडा क्या है? सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहला आह्वान उन्होंने किया पहले चैप्टर में कि भगवान को जानो, उसका स्वरूप ये। और बिल्कुल सेकंड चैप्टर उन्होंने एजुकेशन सेटअप पर उठाया। हमारा शिक्षा तंत्र कैसा होना चाहिए, हमारे बालकों में क्या क्वालिटी, क्या खूबी होनी चाहिए, वो विषय ऋषि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले उठाया। और जब वो विषय ऋषि दयानंद सरस्वती ने उठाया तो उन्हें समझ में आया कि ये रास्ता है भारत की समृद्धि का। और स्वामी श्रद्धानंद ने उसे ज्यों का त्यों उठाया कि भारत में गुरुकुलों का पुनरुत्थान होना चाहिए। अपना सारा जीवन उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना पर लगा दिया, प्रण किया 30,000 रुपए जब तक इकट्ठे नहीं करूंगा घर के अंदर नहीं घुसूंगा। और 3.5 महीने तक घर के अंदर नहीं घुसे। 30,000 रुपया इकट्ठा किया, हरिद्वार के पास जाकर के कांगड़ी गांव में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। और भारत के तंत्र में, भारत की व्यवस्था में उन्होंने एक शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। और इतिहास गवाह है साहब इस बात का कि गुरुकुल कांगड़ी से निकले हुए प्रथम कालीन स्नातकों ने भारत की आजादी का बिगुल बजाने में अपनी लेखनी से, अपने उपदेशों से, अपने कार्यों से, अपने तर्कों से, अपने प्रचार से जिस तरह का योगदान दिया, वो सारा इतिहास का विषय। वो महत्वपूर्ण, यशोधन्य, वो इतनी प्रबल परंपरा भारत जो है गुरुकुल कांगड़ी की रही है। उन स्नातकों ने इतना बड़ा काम स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से किया। महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका में चल रहे आंदोलन में योगदान का विषय हो या दूसरे विषय हो, राजनीतिक चेतना जगानी हो, स्वामी श्रद्धानंद इस बात को मानते थे कोई भी राजनीतिक परिवर्तन उस सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक उत्थान, सामाजिक उत्कर्ष, सामाजिक तालमेल, शैक्षिक तालमेल, धार्मिक तालमेल के बिना, सांस्कृतिक तालमेल के बिना कामयाब नहीं होगा। वो एक उपद्रव और झगड़ा बन करके रह जाएगा। इसलिए उनका एजेंडा ये भी था कि भारत के अंदर पहले हमें एक समाज क्रिएट करना है। ये दोनों लड़ाइयां साथ साथ चले, आजादी का संघर्ष साथ साथ चलेगा और उसके साथ साथ अपने समाज को स्ट्रेंथन करने का, मजबूत करने का अभियान भी चलेगा सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से। और वो शिक्षा का तंत्र स्वामी श्रद्धानंद ने उठाया। 4 गुरुकुल खोले। एक उन्होंने उस समय हरिद्वार के अंदर खोला, 2 उन्होंने मौजूदा हरियाणा, जिस शहर में मैं बैठा हूं, कुरुक्षेत्र, इस शहर के अंदर खोला। और दूसरा उन्होंने दिल्ली के पास फरीदाबाद में इंद्रप्रस्थ नाम से एक गुरुकुल खोला। और एक चौथा गुरुकुल उन्होंने गुजरात के सूपा में खोला, नवसारी जिले के सूपा के अंदर एक गुरुकुल उन्होंने खोला। 4 गुरुकुलों की स्थापना की। और उसके बाद तो बाढ़ आ गई साथ देश में। गुरुकुलों का ऐसा तालमेल, गुरुकुलों की ऐसी परंपरा विकसित होनी शुरू हुई स्वामी श्रद्धानंद के अभियान से। हजारों लोग प्रेरित हुए और उन्होंने कहा भारत को बचाना है तो गुरुकुल 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 खोलिए जो भारत और भारतीयता की बात करते हैं। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। उसके बाद रोलेट एक्ट आया। दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में एक बड़ा जलसा चला, घंटा घर के सामने
उस जलसे को रोक दिया गया, भीड़ को रोक दिया गया। एक सिपाही से गलती से गोली चल गई, स्वामी श्रद्धानंद ने भीड़ को रोका, तुम रुको, खुद आगे बढ़े और उस गोरखा सैनिकों को कहा, अपनी छाती पर, संगीने छाती के ऊपर लग चुकी थी, मेरे ऊपर गोली चलाई। क्यों गोली चलाई तुमने? गोली की आवाज क्यों आई? सारे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। ये 30 मार्च शायद 1919 की घटना थी और 4 अप्रैल के दिन जब दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के ऊपर एक पूरी भीड़ हुजूम इकट्ठा था, नारे लग रहे थे, हिंदू मुस्लिम में एक भाव जगा था आजादी के विरुद्ध। उस समय लोगों ने आवाज उठाई कि अब्दुल्ला चूड़ी वाले एक होते थे, उन्होंने आवाज उठाई, स्वामी श्रद्धानंद की तकरीर होनी चाहिए। स्वामी, कुछ आदमी गए, स्वामी श्रद्धानंद को लाए। वो पहला मौका था सारी दुनिया के अंदर जहां किसी मस्जिद के मिंबर से वेद मंत्रों का पाठ हुआ, शांति पाठ का पाठ हुआ और स्वामी श्रद्धानंद ने पूरी तकरीर की। 2 दिन बाद फतेहपुरी जामा मस्जिद के अंदर भी उनकी तकरीर हुई। 2 बार उन्होंने वहां बैठ करके भारत के लोगों का संबोधन किया और उस समय वहां से एक भाव पैदा हुआ था, हम ऐसे हिंदू, मैं से मुस्लिम, ये भाव विकसित हुआ, लेकिन जल्दी टूट गया। ये परंपरा ज्यादा लंबी नहीं चली और उसके बाद जलियांवाला कांड हुआ। उस एक्ट के विरोध में वहां पंजाब के अंदर स्वामी श्रद्धानंद ने जो नेतृत्व दिया, कांग्रेस अपना अधिवेशन करना चाहती थी, उसके बाद पंजाब के अंदर उस सभा को आयोजित करने का साहस पंजाब के किसी नेता में नहीं हुआ। इतना खौफ और भय का वातावरण था, लेकिन वीरता की प्रतिमूर्ति स्वामी श्रद्धानंद ने ये वजन अपने कंधों पर लिया और कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अमृतसर सम्मेलन में कोई कांग्रेस स्वागताध्यक्ष हिंदी में पहली बार व्याख्यान करने के लिए खड़ा हुआ और वो श्रेय स्वामी श्रद्धानंद को जाता है। उन्होंने कहा, भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करना है, उस खेत खलियान में काम करने वाले आदमी को रिप्रेजेंट करना है। आप अंग्रेजी में अपनी बात कह लेते हो, आपकी कही गई बात इस बुद्धिजीवी समाज में तो पहुंच जाती है, लेकिन वो जो मेहनत कश आदमी है उस तक यदि अपनी बात पहुंचानी है तो भारत की जुबान में बात करिए, भारत के लोगों की जुबान में बात करिए, उस तक अपने भाव को पहुंचाने के लिए वो साहस, पहल करने में स्वामी श्रद्धानंद कभी पीछे नहीं रहे। वो वीरता का इतिहास उन्होंने आगे बढ़ाया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में ध्यान करिए साहब, वो फोटोज आज आप कहें तो मैं दिखाऊं, आपके कैमरा पर मेरे पास हैं, वो फोटोज मैं लेकर के आया हूं। जब नेहरू जी नीचे बैठते थे और स्वामी श्रद्धानंद उस समय, ये आप ये फोटो देखें, यदि मैं दिखा पाऊं, ये फोटो आप यदि देखें तो ये कोने में नेहरू बैठे हैं और ये बीच में स्वामी श्रद्धानंद बैठे हैं चेयर पर, सेंटर में। कांग्रेस में उनकी ये हैसियत थी कि नेहरू पांव में नीचे बैठते थे और स्वामी श्रद्धानंद ये सेंटर में बैठते थे, ये उनकी हैसियत थी। एक फोटो मैं आपके लिए और लाया हूं, वायसराय, ये वायसराय हैं। कभी स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल में गए अपनी पत्नी को लेकर के और गुरुकुल का उन्होंने भ्रमण किया और उस समय ये पूछा, बहुत सारे फोटो मेरे पास है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको समय के अभाव में, और उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि यहां तो बम बनते हैं, हमें तलाशी लेनी है। अंग्रेज अफसरों ने तलाशी ली, झाड़ा फूची करके कहने लगे कि हमें तो कोई बम नहीं मिला, यहां आप बताइए। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, बम तो बनते हैं, बम मैं बनाता हूं। उन्होंने कहा कि कहां पर बनाते हो? अपने एक ब्रह्मचारी की पीठ पर हाथ रख करके कहते, ये मेरे बम है, ये मेरे बम है, ये जब फटेंगे, ये जब बोलेंगे तो भारत के अंदर वो माहौल, वो वातावरण, वो चीजें पैदा होंगी जिनके सहारे देश आगे बढ़ेगा। वो निर्भीकता स्वामी श्रद्धानंद के अंदर थी, वो कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर थी, कांग्रेस को नेतृत्व देते हुए थी। और बाद के दिनों में उन्होंने जब ये महसूस किया कि कांग्रेस के लोग लीपापोती में ज्यादा लग गए, भारत का भविष्य, वो कम से कम भारत के 50 साल 70 साल 100 साल बाद के समाज को देख रहे थे साहब, और उन्हें ये आभास हो गया था
जो रिजिडनेस है भारत में समानांतर चलने वाले धर्मों में, और मुझे कहने में कोई ऐतराज गुरेज नहीं है, खास तौर से इस्लाम के फॉलोअर्स में जिस तरह की रिजिडनेस है, और वो कुरान की उन तकरीरों और उन व्याख्याओं के साथ खुद को बहुत गहराई के साथ बांध करके चल रहे हैं, जो एक फिरका परस्त व्याख्या है, या तो उसकी व्याख्या बदली जाए या उसको सही ढंग से कन्वे किया जाए, लेकिन उसकी व्याख्याएं वही हैं और वही जिहाद के नारे हैं। वो वातावरण, वो बीज मोहम्मद अली जिन्ना के समय से भारत में पैदा हो गया था। कांग्रेस के नेताओं ने उस समय जानते हुए भी उससे आंखें बंद की, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने अपना मुंह खोला और वो हिंदू महासभा के साथ जुड़ गए। और उस समय उन्होंने एक आंदोलन भारत को दिया, वो आंदोलन था शुद्धि आंदोलन। खिड़की दरवाजे खोल दो। ये जो लोग हैं, ये ईरान इराक से आकर के नहीं यहां बसे हैं, मध्य एशिया से नहीं आए हैं। हम आर्य, ये हम बाहर के लोग नहीं हैं यहाँ, ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी पैदाइश है। अरे हम किसी देश से आए हैं तो हमारी भाषा, हमारे ग्रंथ वहां मिले। हम इस देश के लोग हैं, हमें ये फिलॉसफी नहीं चाहिए, हमें ये खोज नहीं चाहिए कि आर्य इस देश में बाहर से आ गए। हमारा ओरिजिन है ये देश, हम आर्यावर्त कहते रहे हैं इस देश को शुरू से। और इस तकरीर के साथ स्वामी श्रद्धानंद ने एक अभियान चलाया। ये जो भारत में लोग हमारी तंग दिली के कारण, हमारी संकीर्णता के कारण, हमारे धार्मिक बंधनों के कारण हमें छोड़कर चले गए हैं, कुछ तलवार की धार से डर करके चले गए हैं, उन सारे अब्दुल्लाओं को, उन सारे अहमदियों को हम आमंत्रित करते हैं। सारे खिड़की दरवाजे स्वामी श्रद्धानंद ने खोल दिए। दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, उस समय हमारे ही अपने समाज के, हिंदू समाज के कई बड़े धर्म धुरंधरों ने, धर्म प्रतिष्ठानों ने इस अभियान का विरोध किया। ये उतनी गति, उस समय जितनी गति पकड़ा था, यदि स्वामी श्रद्धानंद की उस स्पीड का चौथाई हिस्सा भी हमने जारी रखा होता, आज भारत जिन समस्याओं से दो चार हो रहा है, जिस तरह का खौफ का वातावरण, पता नहीं आप अमेरिका में उससे बैठ करके महसूस कर सके कि नहीं कर सके, हमारे गली मोहल्लों में, ग्रास रूट में है, गलियां की गलियां एक एक समुदाय की बनती चली जा रही हैं। वो वातावरण शायद भारत में ना हुआ होता यदि वो अभियान सफल होता। और वो इतना प्रबल हुआ, इतना बढ़ा कि बाद के दिनों में आकर के, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन यदि गलती बड़े आदमी से भी होती है, दृष्टिकोण बड़े आदमी का भी गलत है, तो उसे निर्भीकता के साथ कहा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी, उनका बहुत अवदान है, बहुत योगदान है, बहुत कंट्रीब्यूशन है, भारत को बहुत ताकत उन्होंने दी है, लेकिन जो मूल्य, जो सिद्धांत स्वामी श्रद्धानंद ने खड़े किए थे, उन खतरों से सहमत होते हुए भी वो न जाने किस खुमारी में स्वामी श्रद्धानंद के अभियान के साथ एक विरोध पाल बैठे। और बाद के दिनों में वो ट्यूनिंग उनकी कांग्रेस से खराब हुई, हिंदू महासभा में वो आए, महात्मा गांधी से विरोध का वातावरण बना। मैं उसकी ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता, आज मौका नहीं है उस बात के लिए। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनके सारे अभियान की मुखालफत की, उस अभियान का मखौल उड़ाया, उस अभियान को रोकने का काम किया, उसके चलते जो मुस्लिम फिरका परस्ती लोग थे, उनके अंदर एक आक्रामकता का भाव पैदा हुआ। और 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने स्वामी श्रद्धानंद का जो शिष्य बन करके गया था, उनसे उनके पास एक जिज्ञासा का भाव लेकर के गया था, परिवर्तन का भाव लेकर के गया था, धोखा दे करके अपनी फितरत के अनुसार उसने श्रद्धानंद पर वार किया। और उस दिन स्वामी श्रद्धानंद का देहावसान हो गया, शरीरांत हुआ। हमने अपने बहुत प्रचारक महाशय राजपाल जैसे लोग, न जाने कितने हुतात्मा, न जाने कितने बलिदान मुस्लिम धर्मांधों ने आर्य समाज के लिए हैं। उस समय तो
एकमात्र यदि कोई सामने खड़ा होता था तो खड़ा होने वाला आर्य समाज से जुड़ा हुआ आदमी होता था। स्वामी श्रद्धानंद सरीखे, पंडित लेखराम सरीखे, लाला लाजपत राय सरीखे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी सरीखे, पंडित चमुपति सरीखे, में कितने नाम, एक पूरी परंपरा थी जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया था। मैं शायद काफी आगे निकल गया और मुझे पता है कि मुझे कंक्लूज कर देना चाहिए अब। तो जो भारत का अभियान था, शुद्धि का अभियान था, विधवा विवाह का अभियान था, स्वामी, बस अंतिम बात विवेक जी, एक वाक्य और कहने का मोह नहीं रोक पा रहा। स्वामी श्रद्धानंद ने उस समय, देखिए, उनका सारा परिवार विरोध में, उनके जो ससुराल के पक्ष के लोग थे वो विरोध में, उनकी भाभी ताई जी जिनको बोलते थे बच्चे, वो उनके चारों बच्चों की परवरिश करती थी, भयंकर विरोध में। बावजूद उसके अपने घर के अंदर श्रीमती सुमित्रा जो विधवा हो गई थी और ईसाइयों से बचा करके स्वामी श्रद्धानंद उनको लाए थे अपने घर में, उस दौर में डॉक्टर गुरुदत्त के साथ अपने घर के अंदर, मंदिर में नहीं, बाहर नहीं, चौराहे पर नहीं, धर्मशाला में नहीं, अपने घर की चार दीवारी में स्वामी श्रद्धानंद ने विधवा विवाह का प्रचलन शुरू किया और वहां पहला विधवा विवाह उन्होंने करवाया, जिसकी पहल स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी दयानंद ने की थी, तकरीर की थी, आइडिया दिया था, वो स्वामी श्रद्धानंद ने अपने घर की चार दीवारी में परिवार के सारे लोगों के विरोध के बावजूद, सारे रिश्तेदारों के विरोध के बावजूद अपनी चार दीवारी में उन्होंने विधवा विवाह संपन्न करवाया। क्यों? क्योंकि जो वो यहां मानते थे और यहां से महसूस करते थे, जो आइडिया आता था उस पर श्रद्धा करते थे, और 1000 परेशानियों के बाद, 1000 विरोधों के बाद कोई साथ दे उसके साथ, कोई साथ ना दे उसके बिना, कोई विरोध पैदा करे उसके बावजूद वो उस कार्य को करते थे, उस कार्य पर अडिग रहते थे, आरूढ़ रहते थे। ऐसा अमर हुतात्मा, ऐसा अमर शहीद जिसने भारत के लिए वो बीजारोपण किया, चाहे वो बीजारोपण शिक्षा का था, चाहे वो बीजारोपण शुद्धि का था, चाहे वो जो है बीजारोपण समाज सुधार का था। बाद के दिनों में वो वट वृक्ष भी बना, पर कुछ ऐसे विषैले बीज बकाया रह गए जिनका निदान स्वामी श्रद्धानंद की पद्धति से उस समय हो सकता था। आज वो भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी एक चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए उस पावन जीवन को, अच्छे जीवन को एक बार फिर से पढ़ें, उसका पारायण करें और उनके कार्यों को समझने का प्रयास करें। मैं बहुत हृदय से आभारी हूं कि मुझे खासतौर से डॉक्टर भीष्म अग्निहोत्री जी का, मैं नेट पर उनके विषय में, डॉक्टर साहब जब आपका नाम मैंने पढ़ा तो मेरा स्वभाव है कि आजकल सब घरों में गुरु, गूगल गुरु मौजूद है, तो जैसी भी वो जानकारी देते हैं उस गुरु से मैं आपके विषय में बहुत सारी जानकारी ले पाया हूं, और बाकी अन्य महानुभावों से मेरा पहला परिचय नहीं था। आर्य समाज के प्रतिष्ठित लोग, हमारे बहुत ही युवा साथी भाई भुवनेश खोसला जी और भाई विश्रुत जी, मैं इन साथियों से भी निवेदन करूंगा कि बहुत ज्यादा सहयोग आज भारत को आपके इस समर्थन की, आपके भारत में चल रहे इस सामाजिक परिवर्तन में आपके डिस्कोर्स की, आपके परामर्शों की बहुत आवश्यकता है। इस ज्योति को जगाए रखिए, इस अभियान को बढ़ाए रखिए, और मुझे इस अभियान से जुड़ने का आपने मौका दिया। डॉक्टर अग्निहोत्री जी, डॉक्टर पुरोहित जी, भाई विवेक जी और इस फाउंडेशन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और माफी चाहूंगा यदि कुछ अनुचित कह गया हूं, और ये मेरी क्षमता जितनी थी उतना मैं कह पाया हूं, नहीं जानता कि मैं कितना कन्वे आपको कर पाया हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी अब कुछ कहेंगे? मोहित जी कहाँ है? मोहित जी is there? हाँ जी विष्णु जी, I'm here. इसके बाद आई थिंक राजेंद्र जी ने जो एक पूरा हिस्ट्री सुना दी है, हमने तो घर में कहानियां ही सुनी है, और फॉर्चुनेटली जो बुक्स अवेलेबल हो सकी थी, बच्चों को भी सिखाया कि
क्या लीनेज है हमारी, कहाँ से आए हैं, क्या किया है। बट आई थिंक मैंने भी कुछ चीजें नहीं सुनी है आज, जो इतना सुनने के बाद भी घर में सर राजेंद्र जी बहुत बहुत थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस, दैट वाज वेरी नाइस। बाकी आज जस्ट ऐसे लोगों के बीच में बैठ के ऑल आई कैन से इज आई जस्ट फील ब्लेस्ड कि एक तो ये हमारी परंपरा लीनेज है, एंड होपफुली आवर जनरेशन कैन कंटिन्यू दिस leading from the Vedas as we've been taught throughout. Thank you, Mohan ji. मोहन जी चुपचाप आदमी हैं, वैसे बड़े ही पहुंचे हुए हैं, बड़े ही श्रद्धा वाले हैं। अपने यहाँ के जितना भी संस्कारित लोग हैं उनके साथ काम करते हैं। मैंने जैसे कहा एक बड़ा भारी बना रखा है दे दिया, एक बार कहा था इन्होंने बहुत भारा वहाँ बड़े ही श्रद्धा वाले आदमी है, और हम का स्नेह है। पिताजी से मिला रहते थे, अब आज तो वही है कश्मीर। हाँ जी, मेरे फादर अभी कश्मीर में ही है। वहाँ पे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको रिक्वेस्ट की कि यहाँ आ जाएं, तो अपनी फैमिली के साथ ही हम भी इनको से बात कर सकते। तो बहुत अच्छा किया आपने। आपका बड़ा धन्यवाद, आपने इतना सुंदर बोला। राजेंद्र जी, you have been wonderful, great speech, great performance, and great diction, and everything is great. So I want to say good about it. I want to say much more than this because everybody has some comments or requests. So please go ahead and you please, Vivekji, you carry on with your work. Ask them everybody to say something. Yes, so I think there is some questions are also coming. So Dr. Adityan ji, do you have any question for राजेंद्र जी के लिए? क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, राजेंद्र महानुभाव, आपका ओजस्वी भाषण सुनकर बहुत आशा मिली। कुछ जिज्ञासा भी हुई। स्वामी श्रद्धानंद जी का मोपला विद्रोह और खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ टीका टिप्पणी हो तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। अच्छा, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो ये अभियान शुरू किया था और मोफला आंदोलन के विषय में स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण था कि अंग्रेज सरकार को इस तरह के कानून अनिवार्य रूप से बनाने चाहिए। और आपको इस बात को जानकर के सुखद आश्चर्य भी होगा कि आज भी जो कानून वहां पर मौजूद हैं, कन्वर्जन, जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उसके वापस आने का एकमात्र वैधानिक रास्ता यदि आज भी वहां के कानून में खुला हुआ है तो वो कानून आर्य समाज ही है। यदि आर्य समाज आज भी किसी को शुद्धि का अधिकार देता है तो वो वैधानिक तौर पर वहां की राज्य सरकार स्वीकार करती है। स्वामी श्रद्धानंद ने उस विद्रोह के बारे में, वहां के अत्याचारों के बारे में एक स्पष्ट उठाया और वहां के सारे देश के लोगों को, आप मोपला पहुंचने में पंजाब के लोग जहां 5-7 दिन लगते थे उस समय पहुंचने में, स्वामी श्रद्धानंद का जो Please mute yourself if you are not talking. क्या मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है, बिल्कुल। जी जी। तो वहां उस समय बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारत से लोग गए जी, और उन लोगों ने जाकर के वहां जो कन्वर्जन का एक खुला खेल चल रहा था उसके ऊपर एक आंदोलन खड़ा किया, उसके ऊपर रोक लगाने की मांग की। और स्वामी श्रद्धानंद के प्रयासों से उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे जी। तो उनका बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण मोपला के अत्याचारों को लेकर के था जी। और उन्होंने कांग्रेस से भी उस समय आह्वान किया, लेकिन कांग्रेस तो ठीक है, तालमेल बना रहे, वो ना टूटे, किसी पक्ष में झुका हुआ ना दिखे, उस राजनीतिक चेतना के साथ जाते थी, लेकिन सामाजिक चेतना के साथ स्वामी श्रद्धानंद ने उसको अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। थैंक यू।
राजेंद्र जी, पीयूष अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पीयूष जी। मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहूंगा. वेरी एजुकेटिव. We are very impressed. Rajendra, you have done a great job. I was born in India. I was raised there. I knew a little bit about it. पर आपका जो ज्ञानवर्धन आज भाषण दिया, हमें बड़ा सुख मिला. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Piyush ji. I think there are a couple of things we want to do, but before that, if I may request our national president, Dr. Suren Purohit ji, who is a MD, FSCS, and general and vascular surgeon practicing in Covington, Louisiana, is a clinical professor of surgery at Tulane University, is on board of directors at Lakeview Tulane Regional Medical Center, and also a chairman of API. If you can give vote of thanks, and then we'll go to the next item. It was a very powerful lecture. I keep on hearing it. I thought it never end. It will be great if we keep on talking and we can hear another 2 hours. Very educating, and had learned a lot of things. I think we need a Sadananji now in India and maybe in the whole world. What is going around in this world? I think his philosophy can work very great at this time, because in world is in turmoil, India is in turmoil, and I think that is what we should learn these things and spread these things. And I think India and the world will be great. What is going on in the world at this time? I think it was a great philosopher and also worker, and the way he changes the world, he could change the world at this time. We need a person like him, very firm, very strong, and he did change the India at that time. And I'm sure that a lot of philosophy, what he presented that time, is going on. And I really, a great lecture. And I think we might have to get him again, and I'd like to hear him again and learn quite a bit from him. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. हमारे साथ विश्रुत आर्या जी हैं, who is also General Secretary of Arya Pratinish Sabha. विश्रुत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी को सादर नमस्ते. I think it's been a privilege to have been part of this organization and organizing this program. When Bhishmaji spoke to me first, the only name I could think of was of Dr. Rajendra Vidyalankar. I know him since my childhood, and I knew that he will be able to give the उसको बोलते हैं गागर में सागर भर देना. Within 1 hour, he will be able to give the great information that we are all looking for. So on behalf of Arya Pratinish Sabha America, on behalf of our President Sri Bhuvnesh Khosla ji, I thank Dr. Rajendra ji for his presence and for his time. And of course, I want to thank you all for giving this opportunity to spread the word about Swami Shraddhanand ji and his contributions towards the greater society. We have many of our board members, many of our Arya Samaj leaders joining this congregation today. I see Dr. Rajendra Gandhi, past president. I see Mr. Malan. I see Dr. Sudhir Anand from California. So all across North America, they have joined. And many of them, I don't see them. But I thank you for joining this. And I'm sure Dr. Rajendra will not say no to any of our requests in future as well. So I look forward to hear more of his talks in the days to come. And Vivek ji, excellent organization, and it's a great organization to be part of this. Thank you, Vishnu ji. And we'll look forward for further collaboration in the future of any program we have. राजेंद्र जी, एक ही शब्द आ रहा है आपके भाषण को सुनने के बाद, विप्लवकारी स्वामी श्रद्धानंद जी का चरित्र कितनी आग भरी हुई थी उनके अंदर, और उन्होंने उसको कैसे चैनलाइज किया. So again, thank you on behalf of Friends of India Society International, and thank you everyone for joining today's program. At this point, I think we can conclude our program. Thank you. Thank you. Thank you.